Have you ever heard of an introductory program like that? This is our special edition of Agenda with 145 girls from border areas, from Jammu and Kashmir, from the Northeast. All of them talk about how challenging it can be to just get basic education. For some, it's traveling very, very far. For some, even that is a huge challenge because their parents don't want to send them away. First of all, I want to just start with the contingent that is here. All these girls have come out of these border schools. They've been brought here by SSB to go around various places in India. And for many of them, it's the first time that they are stepping out of their home. This contingent is from Jammu and Kashmir. And as we know, it's very special actually to hear what they have to say, because for the last 3-4 months, schools haven't been working at all. तो आप लोग इतने दिनों से, बहुत दिनों से छुट्टी पे थे. तो आप लोग बाहर के, हम लोग तो दिल्ली में सोच के, बहुत लोग सोचते होंगे कि पता नहीं कैसा होता होगा, और ये साल भर हर साल कुछ ना कुछ होता है, कोई टेंशन होती है, कर्फ्यू होती है. क्या आप दिल्ली के लोगों को समझाना चाहेंगे कि व्हाट इट्स लाइक टू मिस आउट ऑन स्कूल, कि 4 महीने हो जाए और उसके बाद एग्जाम भी हो लेकिन स्कूल में आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो आप लोगों ने कैसे कोप किया? मैम, सबसे बड़ी बात जो है कि श्रीनगर की बात जो है, उसमें जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, तो पाकिस्तान वाले तो चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो उनके साथ जॉइंट हो जाए, लेकिन वो जो है वो मतलब उनके टेररिस्ट वहाँ के अटैक करते हैं और हमारी जो पढ़ाई जो है वो उस वजह से सफ़र होती है. और जो हम लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को मतलब अच्छी तरह से नहीं कर पाते. अच्छी मतलब कोई हमें घर में तो उतनी जितना बच्चा स्कूल में सीखता है या ट्यूशन पे भी उतना नहीं कर सकता. जितना बच्चा स्कूल में सीखेगा ईच एंड एवरीथिंग, वो तो घर पे होगा नहीं. घर पे बैठना है, किताब खोलनी है, पढ़ना है. तो वैसी पढ़ाई भी हर चीज सफर होती है. जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी तो ड्यूटी पे नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर निकलना नहीं बनता है. 24 आवर्स हम रूम में रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करके. तो इस वजह से हमारी पढ़ाई जो हर एक चीज हमारी जो है वो सफर होती है. आप ऐसे कितने लोग हैं जो कि बॉर्डर पे हैं? आप तो श्रीनगर में हैं, कोई ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान के मतलब LOC के पास है, ऐसे कोई हैं? नो, ऐसा कोई नहीं है जो एकदम वैली से हैं आप लोग. और एग्जाम, सब लोग कहते हैं कि एग्जाम देना बहुत ज्यादा टफ था बिकॉज क्योंकि जब अच्छी तरह से स्टडी नहीं हो पाती है. सबसे बड़ा नॉलेज तो बच्चा स्कूल में ही गेन कर सकता है. तो फिर हाउ डू यू ऑल स्टडी? फिर ट्यूशन वगैरह करनी पड़ती है घर पे ही. पेरेंट्स अगर जिसके पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, वो तो गाइड करेंगे बच्चे को. जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चे को खुद ही रट्टा मारना पड़ेगा. बस हाँ, खुद ही पढ़ना पड़ेगा. तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो बेटर है, नहीं तो फिर फेल. Well, that's just extraordinary actually. Just thinking of the challenges. हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली में बैठ के हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि the kind of challenges that all of you young women face over here. And I just wanted to point out some of the findings of a Niti Aayog report which say that is particular problem of the Jammu and Kashmir area. But even in the Northeast, and these young women are from the Northeast, even in the Northeast there are other things as well. For instance, you have to travel kilometers after kilometers to get to school, and that's why in many areas, especially in Manipur, you have to be, the dropout rate is up to 50% among girls, just because access to education is so high. So how many of you are from the border areas over there? We are 20. Altogether we are 20. 20. Yes. What is it that, how difficult is it going to school for some of you? Actually in Sikkim there is no difficulties, so all are literate, but also there is colleges are very far from us, so we get suffer, that's it. Actually Sikkim, we don't have that problem there. Yeah, but the other places like Manipur, anyone here from Manipur or from Arunachal? Who have that? Yeah, you're from Arunachal. What is the problem that you all face? In our place also we don't have so much problem, but main problem we have is weather. When the weather condition is bad, then we can't go to school. That's the one problem. So how often is that? It used to have like now in this weather we will not be able to go to school much because there it will be snowing. It will snow there.
also. Oh, right. So it depends on that as well. Are there also problems that I heard a lot of you girls saying, आप लोगों ने बोला कि आप लोगों के मम्मी पापा जो है स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं, लड़कियों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है बिकॉज सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है. ऐसे कोई हैं जो कहेंगे जिनके साथ ये हुआ है because of security and other things like that, that girls feel the pressure a lot more? You want to talk about it in Chhattisgarh? In Chhattisgarh, that's a problem. Yeah. Can you what happens? हाँ, आप बताइए. हाँ. वैसे तो छत्तीसगढ़ में सभी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है. वहाँ पर एक तो नक्सली का भी प्रॉब्लम होता है और एजुकेशन भी बहुत ही अभी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं. तो ज़्यादातर बोला जाए तो गांव में लोग एजुकेटेड नहीं है, तो फिर वो नक्सली उनको अपने ऊपर दबाव करते हैं और अपने साथ करते हैं. तो लोग अपने बच्चों को भी स्कूल जाने नहीं देते, डरते हैं उससे. और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन मम्मी पापा के दबाव में, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है तो लोग नहीं जानते कि एजुकेशन क्या है, दुनिया क्या है, वो नहीं जानते वो लोग. तो फिर वो. आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं? मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं नहीं है, लेकिन मेरे पापा समझते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और 12th पास आउट. तो बाकी लड़कियों को किस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं? बिकॉज सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो फिर गांव वाले नहीं पढ़ने देते. नो मैम, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको एजुकेशन के बारे में नहीं पता है कि एजुकेशन से क्या जॉब मिलता है. वो लोग ये सोचते हैं कि कितना भी पढ़ाए कुछ नहीं मिलता, ऐसा सोचते हैं लोग गांव में. यस मैम. तो आपके गांव में कितनी लड़कियां होंगी जो स्कूल नहीं जाती हैं? मैम हमारे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं सभी अधिकतर काम करने जाती हैं मैम. क्या काम करती हैं? ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह में जो डेली वेज लेबरर्स हैं. यस मैम. तो बिना पढ़े लिखे. यस मैम, आधा पढ़ के छोड़ देते हैं. गांव में 8वीं तक क्लास है, उसके बाद बाहर नहीं जा पाते. So this is very very typical. I'm so glad you shared your story with us. आप बस्तर से हैं. So she's from Bastar, and if you look at Niti Aayog's report, 2015 report, this is exactly what they say. They say that the dropout ratio is very very high in these areas, which are the border areas or the ones which are hostile areas, as they call it. 34% high dropout ratio, and that's because many times in her place it's not that, but many times it's also a huge effort to get them to school. And in some areas in the northeast as well, we were reading that the problem is that because there are not very good roads, then teachers, right? That's a problem. So tell us about that. What is that thing? There is a very worse condition of road. While traveling, we'll be too tired. Even while going to gazing or district, we are getting many problems to work there. So that's it, ma'am. The condition of roads is very worse. So how long does it take you to go to school? Mine, I'll have to go on only 20 minutes, ma'am. Walking. Yeah, walking. But for other people, it might be much longer. other people- Which is sorry, yeah. Other people will suffer because of road conditions, or there is very far in colleges, so they are very much suffer. Most of the peoples they didn't have money to give good education to the children. Yeah. So they get suffer. But this is something that is, and we're hearing live stories over here of young women telling their stories of how it is. And in one of the reports, it also mentioned how parents in northeastern areas have to send their children away because daily commute is very difficult. They have to send their children away to hostels. But that also involves being well off enough to give them ration for the entire year. And that becomes tricky for a lot of parents. So that means only a few parents can do it. So you know of parents who don't send the girls to school because of this? No, ma'am. There is no. There are Not in Sikkim, but in other places, I think that's a problem. Okay, आप लोग भी छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, तो उन्होंने जो कहा, आप लोगों ने भी वही सुना है, उस टाइप की प्रॉब्लम या कुछ अलग प्रॉब्लम है आपके गांव में? तो स्कूल जाने में सब स्कूल जाती हैं? ऐसे कोई हैं जिनको कोई मतलब जो परेशानी आप बता रही थी? हाँ, प्लीज बताइए. आप छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ. कई जैसे छत्तीसगढ़ को माओवादी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, पर क्या ही जगह ऐसे भी हैं जहाँ
यहाँ पे मतलब इस तरह की वो नहीं है, क्योंकि ना अभी जैसे ये जगह जगह सीआरपीएफ और बीएसएफ का कैंप लग चुका है, इस कारण से अभी हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जो हमारा इलाका है वो, और बस्तर है जो जैसे सुकमा कोंटा है, वहाँ पर अभी भी बहुत मतलब प्रॉब्लम है। कई जगह कहीं पे रोड को मतलब वो कर देते हैं, उड़ा देते हैं, या स्कूल को निशाना बना देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे ये सब मतलब अब गाँव वालों का सोच भी बदलते जा रहा है। शासन के द्वारा कई योजनाएं निकाली जा रही है कि जैसे जो नक्सली हैं तो अगर सरेंडर। आप कौन से क्लास में हैं? अभी मैं ITI कर रही हूँ। अच्छा, आप तो हायर एजुकेशन में चली गई हैं। ओके, सो देयर आर पीपल फ्रॉम स्कूल एंड फॉर अदर थिंग। तो ये दिस इज एक्चुअली व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट इज अ क्लासिक इंस्टेंस ऑफ हाउ many policymakers feel that the way to counter Naxalism or Maoist infested attacks is to counter that by providing better schools. But what is a problem, perhaps आप लोगों ने भी देखा होगा, in many areas it's the schools which get attacked. In Kashmir we've seen a lot of schools getting burned. आप लोगों के इलाके में स्कूल ऐसे जलाए गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? मैम हमारे इलाके में नहीं चलाया। पहले मतलब काफ़ी टाइम पहले जलाए हुए, तो अभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम मतलब हम दूर पढ़ने नहीं जा सकते, मतलब कि हमारे वहाँ पे रोड भी बहुत गंदा है, तो गाड़ियों की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे अब फिर भी ठीक हो गया है, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत फौज आ गई है, CRPF आ गई है, BSF वाले आ गए हैं, तो अभी हम फिर भी मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो पहले तो हम बिल्कुल बाहर भी नहीं निकल पाते थे, तो अभी है थोड़ा। तो अगर हम लोग अगर दिल्ली के स्कूल या फिर मूवीज में जब आप स्कूल्स को देखते हैं और दिल्ली में जैसे लोग स्कूल पे जाते हैं और आप लोग जैसे स्कूल पे जाते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? इज देयर एनी डिफरेंस दैट ऑल ऑफ यू फील मे बी इन द वे दैट यू सी स्कूल्स बीइंग प्रोजेक्टेड इन द मूवीज और ऑन टीवी, और आप अपने स्कूल में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या लगता है? किसी को कुछ लगता है डिफरेंस बिटवीन जो टीवी पे और बाकी लोग नॉर्मल जो दिल्ली या बड़े शहरों में रहते हैं और आपके स्कूल में कोई ऐसा डिफरेंस दिखता है, और इज इट ऑल द सेम? नो मैम, हाँ। वो तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे क्या है? सिटीज के स्कूल तो वो तो नेचुरली सी बात है, अजीब से होते हैं, मतलब उसमें हर चीज की फैसिलिटीज होती हैं, हर चीज उसमें अवेलेबल होती है। टीचर्स ऐसे भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप लोगों के स्कूल में टीचर्स की कमी होती है? हाँ, सबसे वहाँ पे कोई ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिलहाल चीज नहीं मिलेगी। फिलहाल तो वहाँ पे टीचर ही नहीं मिलेंगे, जो हमें पूरे टीचर चाहिए वो ही नहीं मिलेंगे। Okay. हाँ, उसके बाद में जो यहाँ सिटीज के स्कूल हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। Well, that is perhaps one of the things that we really take for granted, the teacher-student ratio. And one of the biggest problems that are set out by policymakers is that in these border areas, you don't have a regular supply of regular proper teachers because of the various problems, whether it's security, whether it's a problem of attacks, or the fact that it's border areas and manpower, getting manpower over there. These are the problems. We're going to take a short break now on Agenda. When we come back, these girls are still with us. We'll hear from more of them about their experiences of going to school. Stay with us.